नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। So today we will be beginning with your very first session of your aspiring Charanashraya. You actually are in a level called Upasaka. The next exam you're going to write is called Charanashraya. That makes you an aspiring Charanashraya. So in order to uh, cut down all the confusion, we will henceforth call our group as, this group as uh, Charanashraya. So that way we will move forward. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. So we'll straight away begin with the session. I'll project to you today the particular PDF which I've already sent to you. So in this PDF, we can see these are the parts we're going to cover today. Importance of offering food and having prasadam. So I've already sent this PDF to you. You can either watch it on the screen or you can open it in your system and you can read it. But since I'm going to project it, it should be fine. So what is the importance of offering? Why should we offer? Preparing the offering for Lord Krishna, how do we prepare? What is prasadam? We all honor prasadam, but what exactly it is? Why should we honor prasadam? Why is it so important to and honor only prasadam? How should one honor prasadam? तो कैसे एक व्यक्ति प्रसादम का सेवन करना चाहिए? So it's called honoring prasadam. Straight away we will move. I'll keep this projection on for you so that it is easy for you to concentrate in the class. And already posted this parts to you, this particular PDF to you. What is the importance of offering food? So importance of offering food, why we should offer? Why should I offer? It is gratefulness. Kritagnata. If you offer to Krishna, then you are conscious that these foodstuffs, these grains, these fruits, these flowers, this milk, it is given by whom? Krishna. तो कृष्णा को जब आप अर्पण करेंगे तो हम इस भावनामृत में रहेंगे कि कृष्णा ने ये सब हमें दिया है. इट इज गिवन बाय कृष्णा. I cannot produce it. In my factory, I cannot produce all these things. Fruits, flowers, milk, original, you cannot produce. Artificial, Chinese way, we can produce a lot of things. So it is not that Krishna is hungry and begging food from us. ऐसा नहीं कि कृष्णा को भूख लगा इसलिए आपको भोग चढ़ाना है. And Krishna doesn't depend on your offering. The purpose of this offering is to create a loving transaction. तो प्रेममया एक संबंध बढ़ाने के लिए दताति ददाति प्रतिगृणाति, one of the 6 exchanges that Rupa Goswami says that increases the feelings between, loving feelings between devotees is dadati pratigranati, dena or lena, gifts. Then bhunjate bhojayate, then to make them to feed them and to also get fed by them. कभी उसके दावत में हम चले गए और कभी हमारे दावत में हमारे घर वो आ गए. So you love me and I will love you. So Krishna wants this
transaction. As God, Krishna's energy creates and sustains everything. So, why should he even beg for a leaf, a fruit, a little water from us? तो उसको पत्रम पुष्पम फलम तोयम की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि सिर्फ ये मुझे अर्पण करने से मैं संतुष्ट हो जाता हूँ. So he'll be very pleased. However, if we offer him a piece of fruit, a leaf, water with love, प्रेम से अगर हम देंगे तो कृष्णा says, I am so poor, कृष्णा I am so poor, तो हम कृष्णा को बोल रहे हैं I am so poor that I cannot secure anything. तो मैं कुछ भी लेके अर्पण नहीं कर पाऊंगा, तो फल तो मैं ऑफर कर पाऊंगा, जो मैं फल मैं खा रहा हूं उसको पहले भोग ऑफर करो, फिर वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करो. तो पत्ता, तुलसी पत्ता तो ऑफर कर सकते हो. सो कृष्णा को हम बोल सकते हैं मैं बहुत दीन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए सिवाय इतने. सो सेक्योर दिस फ्रूट and in the leaf, kindly accept them. Such an offering would make Krishna very glad. कृष्णा को ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई प्रेम भाव से उसको भोजन देता है. If he eats what we offer, our life will be successful. अगर कृष्णा हमारे अर्पण किए हुए भोग को खाएगा तो हमारा सिद्धि होगा. तो so for he will actually make so if he eats what we offer, our life will be successful, for we actually make friends with Krishna. So one of the acts of friendship is to give food and to accept food. So we are building our friendship with Krishna. Fruit, flowers, water can be secured practically in any part of the world. ये तो हर जगह मिलेगा. फल, पत्ता, पानी और दूध हर दुनिया के कोने कोने में मिलेगा. इसको लेने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए. So we should remember that it is not vegetarianism which is important, nor is it that God is in need of anything. The important point is that we simply have to try to learn how to Krishna. So what is uh, the basis behind all this Krishna conscious activities? It is to learn how to Krishna. कृष्ण से प्रेम कैसे करें, इसको सीखने के लिए हमें ये लविंग एक्सचेंजेस, डिवोशनल सर्विस करना चाहिए. वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस इज ऑफरिंग फूड टू कृष्णा, एक्सेप्टिंग हिज मर्सी एज प्रसाद. व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑफरिंग? तो पहले तो हमने पढ़ा क्यों ऑफर करना चाहिए, अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑफरिंग. तो इस भोग चढ़ाने में क्या है, वो तर्क क्या है? कृष्णा डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ए नॉन डिवोटी. पहला, कृष्णा तो नास्तिकों के हाथ से कुछ भी मतलब लेंगे नहीं, एक्सेप्ट ओनली डिवोशन. तो अगर आस्तिक भी अगर रूटीनली ऑफर करेगा वो कृष्णा को अच्छा नहीं लगेगा. व्हाट कृष्णा वांट्स? डिवोशन, लव, प्रेम, भक्ति चाहते हैं. तो कृष्णा सेलिंग पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति. भक्ति से अगर कोई मुझे ये अर्पण करेगा तदहम अश्नामि, then I will eat it. Then then our life becomes successful if we are able to do that. So that is the main point. ये मुद्दा है. So one has to become a devotee. सबको भक्त बनना चाहिए अगर कृष्णा का सेवा हमें करना है. कृष्णा का सेवा तब तक नहीं कर पाएंगे जब हमारे अंदर कुछ अंश भक्ति ना आए. तो जितने मात्रा में भक्ति आया है उतने मात्रा में सेवा करने देंगे भगवान. नॉट ए गुड कुक, ऐसा नहीं कि महान पकवान होना चाहिए हमें. तो प्रेम से हम कुछ भी अर्पण करेंगे, कृष्णा उसको स्वीकार करेंगे. सो बट इफ ही इज अ डिवोटी देन ही विल बी अ गुड कुक ऑल्सो. लेकिन अगर कोई भक्त है तो वो सीखेगा खाना पकवान करने का विधान को सीखेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे मेरे भगवान को ये ऑफर करना है, तो मुझे सीखना है अच्छी तरह से. तो वो कोशिश करेगा कि वो अच्छे अच्छे पकवान बनाना सीखे. सो ही विल बी अ गुड कुक आल्सो इवेंचुअली. सो दिस इज गिवन इन परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर. जो भी हम पढ़ेंगे सब प्रभुपाद के बुक्स पे आधारित. प्रभुपाद ने ऐसा कुछ सब्जेक्ट छोड़ा नहीं
जिसमें हम डिस्कशन मतलब हमारा मिस हो जाए। हर पहलू कृष्णा भावनामृत के हमारे भक्तिमय सेवा के लिए कृष्णा ने उत्तर दिया है, और प्रभुपाद ने उसका वर्णन किया है हमारे लिए अपने पुस्तकों में। और वो सब का निचोड़, वो सबको हम जोड़ के एक टॉपिक का अलग अलग पुस्तकों से जोड़ के ये कृष्णा आश्रय प्रभुपाद आश्रय कोर्स हमने बनाया है, जिसके अंतिम द पेनल्टीमेट, अंतिम से एक पहले वो है एस्पायरिंग चरणाश्रया। उसके बाद आप यू विल बी पुश्ड इनटू चरणाश्रय 1 एंड देन चरणाश्रय 2। सो योर नेक्स्ट लेवल, जन्माष्टमी में आपका ये लेवल यदि कंप्लीट हो जाएगा, आप इंटरव्यू पास हो जाएंगे, रिटर्न टेस्ट पास हो जाएंगे, सेरेमनी में आएंगे, तो आप चरणाश्रय लेवल एंटर करेंगे। इसलिए आपका एग्जाम का नाम भी चरणाश्रय रहेगा। तो यूर कॉल्ड एस्पायरिंग चरणाश्रय। तो आपका 18 महीने उसके बाद आपका वेरी डीप टीचिंग्स विल बी देयर बाय सीनियर डिवोटीज। जो आपने अभी तक पढ़ा उसको प्लस एडिशनली जो अलग कुछ चीजें सीखना है आपको, वो आपको सिखाएंगे। दैट इज फॉर द नेक्स्ट लेवल। सो नेक्स्ट, एक्चुअली ऑल काइंड्स ऑफ प्रसादम आर प्रिपेयर्ड फॉर कृष्ण। तो प्रसाद मतलब भोगा मतलब कृष्णा के लिए, नॉट फॉर पीपल। हमारे सेवन के लिए नहीं है, कृष्णा के तृप्ति के लिए है। और कृष्णा अपना जो प्रसाद है हमें जो देते हैं, वही प्रसाद जो हमें देते हैं उसको हमें स्वीकार करना है। द डिवोटीज पार्टेक ऑफ प्रसादम विद ग्रेट प्लेजर। उस प्रसाद को भक्त बहुत ही प्रसन्नता से स्वीकार करेंगे। सो नेक्स्ट, द लॉर्ड्स ईटिंग। तो भगवान का जो सेवन है, सो द लॉर्ड इज having his the Lord is having his food. So what does it signify? God is not hungry, but he eats. At the same time, he leaves the food as it is, and thus it is transformed into prasadam. भगवान खाते भी हैं और तद रूप उसी को वहां पे रख देते हैं। तो उन्होंने जो खाया वो खा लिया, और उसी तरह का, उसी रूप का, आकार का आहार वो वापिस हमें हमारे लिए रख देते प्रसाद के रूप में। That is his mercy. So God is full, yet he accepts all the food that we offer. भगवान तो संपूर्ण परिपूर्ण है, फिर भी हमारा जो दिए हुए भोग है वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम भक्ति से दे रहे हैं। Still the food remains as it is. लेकिन हम देखते हैं कि खाना तो ऐसे ही है। So वो अपने भगवान he can eat with his eyes. अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती। आंखों से खा सकते हैं और मुंह से सूंघ सकते हैं, और खानों से वो कानों से वो देख सकते हैं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड, दैट इज द पावर ऑफ द लॉर्ड। सो ब्रह्म संहिता के जो हम दर्शन आरती में गाते हैं, अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। एवरी सेंस ऑफ द लॉर्ड्स बॉडी हैज ऑल द पोटेंसीज ऑफ द अदर सेंसेस। तो भगवान के जो शरीर में है शक्ति, वो अगर आंखों को देखने का रोशनी है तो वो कानों से भी देख सकते हैं। सिंपली बाय लुकिंग एट द फूड दैट इज ऑफर्ड टू हिम ही ईट्स इट। केवल जो भोग आपने चढ़ाया उसके ऊपर दृष्टि उनका डालने से वो खा लेते हैं। दैट इज दिस omnipotency. By immense transcendental energies, Krishna can actually convert matter into spirit. तो जो आपने, जो वस्तुएं आपने भगवान को भोग चढ़ाया वो तो भौतिक वस्तु है, लेकिन उसको आध्यात्मिक वस्तु कैसे कृष्ण अपनी दृष्टि डाल के बना दिया, वो तब वो प्रसाद बन गया। सो व्हेन यू प्लेस एन आयरन रॉड इन अ फायर, बिफोर लॉन्ग द रॉड बिकम्स रेड हॉट एंड एक्ट्स जस्ट लाइक फायर। तो अग्नि में जब हम लोहे का शलाका रखेंगे, कुछ समय के बाद वो लाल हो जाएगा, और कहीं पे भी आप डालेंगे वो अग्नि जैसा काम करेगा, वो उसको क्या जला के राख कर देगा। So, such a food is called Krishna Prasadam, which means mercy of Lord Krishna. Krishna Prasad, भगवान का दया है हमारे ऊपर। So how do we prepare for offering for Krishna? How do we prepare this offering?
आपका भोग को आपको कैसे प्रिपेयर करना है. So Chaitanya Mahaprabhu has approved all methods employed in cooking and offering food to Krishna. So indeed he was so pleased that he said, frankly, I will personally take the lotus feet of anyone who can offer Krishna such nice food and place the lotus feet on my head birth after birth. चैतन्य महाप्रभु इस यहाँ बता रहे हैं कि तो अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्रेम से भोग चढ़ा रहा है, मैं ऐसे व्यक्ति का पैरों को अपने छाती पे लगाने के लिए तैयार हूँ. That much he glorifies the devotee who is offering food to Krishna. Selection of proper ingredients. So, प्रभुपाद जी के एक पत्र में वो बताते हैं अपने शिष्य को, I have noted your questions carefully. Regarding your question about prasadam recipes, Krishna is offered foodstuff in goodness. सत्व गुण में जो पदार्थ हैं उसी को हम अर्पण करते हैं. The foodstuffs in the mode of goodness are, और वो कौन से पदार्थ हैं वो भी भगवत गीता में कृष्णा ने बताया है. तो हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि हमें कृष्णा को क्या ऑफर करना है. कृष्णा बता रहे क्या ऑफर करना है. व्हाट इज दैट वी हैव टू ऑफर? सो गेहूं, व्हीट, राइस, अन्न, पल्स, जो दवस धान्य है, बीन्स, पीस, फिर शुगर, शक्कर, हनी, शहद, बटर, मक्खन, ऑल मिल्क प्रिपरेशन, दूध से बना हुआ जो भी प्रिपरेशन, वेजिटेबल्स, सब्जी, फ्लावर्स, पुष्प, फ्रूट्स, फल और ग्रेन्स, धान्य, ये सत्व गुण में आते हैं और ये सब हम पका के प्रॉपर रेसिपी से हम कृष्णा को ऑफर कर सकते हैं. तो दीज फूड्स कैन बी ऑफर्ड इन एनी शेप, बट दीज दे आर प्रिपेयर्ड इन वेज बाय द इंटेलिजेंस ऑफ डिवोटीज. तो केवल दूध से 1000 से ज्यादा पकवान हम बना सकते हैं. केवल राइस से, अन्न से 1000 से ज्यादा सात्विक आहार हम बना सकते हैं. 1000 से ज्यादा. तो खाने पीने की वैरायटी की मतलब कोई कमी है ही नहीं. सो the food groups is stated by Krishna in Bhagavad Gita and we should follow accordingly. तो उसको सत्व गुण में जो आहार पदार्थ है वो कौन सा है कृष्णा ने भगवत गीता में हमें समझाया है, तो उसी को हमें ऑफर करना चाहिए. So what is the authority? Now the thing is you must consider by whom you are being taught. आप अपना ज्ञान कहाँ से ले रहे हो? एक भौतिक विद्वान से ले रहे हो या एक आध्यात्मिक गुरु से ले रहे हो? तो खाने पीने के मामले में भी हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन दिया है कि क्या हम सेवन कर सकते, क्या नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर सकते. वेरी साइंटिफिक, वैज्ञानिक. सिर्फ ये नहीं दिया है कि क्या खाना चाहिए, ये भी दिया है क्या नहीं खाना चाहिए और ये भी दिया है कि क्यों नहीं खाना चाहिए. And he asked for food preparations from within this group. कृष्णा इस जो उन्होंने लिस्ट किया है, इन पदार्थों से आप मुझे भोजन खिलाइए. And a few vegetarian items are also forbidden. तो केवल वेजिटेरियन है इसलिए नहीं खाना है. So we are not vegetarians, we are कृष्ण प्रसादटेरियंस. तो हम जो कृष्णा ने हमें बोला है हम आप भोग में अर्पण कर सकते हैं, उसी को हम अर्पण करके प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं. केवल सब्जी में दो है, गार्लिक, ऑनियन, तो प्याज, लहसुन, उसको यूज नहीं करना है. वो तो वेजिटेबल्स है, लेकिन उसको क्योंकि वो तमोगुण में आते हैं, दे आर इन द मोड ऑफ डार्कनेस. जो सेवन करता है उसको वो तमोगुण में ढकेल देता है. तो क्लीनलीनेस व्हाइल प्रिपेयरिंग द फूडस्टफ्स. तो आपने पढ़ा होगा हाउ वी शुड कीप आवरसेल्व्स क्लीन, अंदर भी और बाहर भी. So in preparing food, cleanliness is most important principle. तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रिंसिपल है वो क्या है? शुद्धता, स्वच्छता. Nothing impure should be offered to God. जो सड़ गया है, जो अशुद्ध है, ऐसे कोई पदार्थ को हमें कृष्णा को अर्पण नहीं करना है. So keep your kitchen very clean. हमारे रसोई घर को हमें बहुत ही स्वच्छ रखना है, बाहर से भी, और जब हम खाना पकाएंगे वो जो पदार्थ हम यूज कर रहे हैं वो भी बहुत ही स्वच्छ होना चाहिए. और खुद जो हम पका रहे हैं, हम जो पकाने वाले हैं, हमें बहुत
शुद्ध रहना पड़ेगा, नहा के, तिलक लगा के, भगवान को ध्यान करते हुए हमें खाना पकाना होगा। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, हमेशा अपने हाथ को धोइए, थरोली बिफोर एंटरिंग द किचन। तो जैसे कि बाथरूम से जान बाहर आने से पहले हम हाथ को धोते हैं, किचन के अंदर जाने से पहले हमें हाथ को धोना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध करके अंदर जाना पड़ेगा। बाथरूम में जब जाते हैं अशुद्ध हो जाते हैं, तो बाथरूम से हमें शुद्ध होके आना है तो साबुन से हाथ धो के या फिर नहा के हमें आना है। और किचन में अगर जाना है तो हमें नहा के किचन में जाना चाहिए, स्वस्थ के स्वच्छ होके हमें जाना चाहिए। सो अरेंज व्हाइल प्रिपेयरिंग फूड, डू नॉट टेस्ट इट। जब प्रसाद हम बना रहे हैं, उसको चखना नहीं है। तो फॉर योर कुकिंग फॉर द मील, नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, कृष्णा के तृप्ति के लिए आप इस भोग को बना रहे हो, अपने संतुष्टि के लिए नहीं। जब कृष्णा पाएंगे हम, अपने संतुष्टि होने तक हम खा सकते हैं। अरेंज पोर्शंस ऑफ फूड ऑन द डिनर वेयर केप्ट स्पेशली फॉर दिस पर्पस। तो खाना पकाने के लिए भी अलग सा बर्तन होना चाहिए भगवान के लिए, खाना परोसने के लिए भी भगवान के मंदिर में अलग सा बर्तन होना चाहिए, वो केवल भगवान के लिए उपयुक्त होना चाहिए। नो वन बट द लॉर्ड शुड ईट फ्रॉम दीज डिशेस। तो इन इन पात्रों से केवल भगवान को अर्पण करना चाहिए और केवल भगवान को याद इसमें से खाना चाहिए। हमें फिर हमें उसको ट्रांसफर करके हमारे घरेलू बर्तनों में, फिर वहां से हमें हम अपने प्लेट में डाल के खाना चाहिए। तो खाना पकाने का बर्तन अलग होना चाहिए भगवान के जो भोग में चढ़ता है, और खाना परोसने का भी बर्तन अलग होना चाहिए। नेक्स्ट, सो प्रोसीजर फॉर ऑफरिंग फूड। तो खाना कैसे अर्पण करें? तुलसी शुड बी प्लेस्ड ऑन ऑल फूड स्टफ्स बिफोर ऑफरिंग टू द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पे अभी करंट चला गया है, हो सकता है मेरा वाईफाई भी स्विच ऑफ हो जाए, अगर मेरा यूपीएस बंद हो जाएगा, उससे पहले हमारा वॉचमैन डाल देगा जनरेटर, तो शायद हमारा काम चल जाएगा। बट आई विल कीप स्पीकिंग इवन इफ वी आर लॉग्ड ऑफ टू मेंटेन माई कंटिन्यूटी। सो तुलसी पत्ता को खाने में, भोग में हमें हर एक पदार्थ में डालना चाहिए, या एटलीस्ट थाली में एक तुलसी पत्ता होना चाहिए। इट इज एडवाइजेबल दैट फूड बीइंग ऑफर्ड टू डेटी शुड बी कवर्ड व्हेन टेकन फ्रॉम किचन टू डेटी रूम। तो जब आप किचन से थाली में सजा के भोग को लेके जा रहे हो मंदिर तक, तो उसको हमें ढक के जलाना चाहिए, क्योंकि कोई छिपकली देख लेगा, कोई कुत्ता देख लेगा, कोई घर के सदस्य देख लेगा और देखेगा अरे आज ये बना है, मुझे खाना है। तो फिर वो भगवान को जो अर्पण करने के लिए जा रहा है उसके ऊपर अपना आंख डाल देगा, वो अपराध हो जाएगा और आप उस अपराधी के भागी हो जाएंगे। तो यू शुड नाइसली कवर इट एंड टेक, इन दैट वे अदर्स मे नॉट सी इट, कोई भी उसको ना देखे। Those who are not accustomed to following the advanced regulative devotional principles may desire to eat that food। जो अभी कृष्ण भावनामृत में नहीं है, वो देखें अरे जामुन लेके जा रहे हैं, ये मुझे खाना है, तो अपराध हो गया। Therefore one should be given a chance to not be given a chance to even see it। तो मौका ही नहीं देना चाहिए कि कोई उसको देखे। However, when it is brought before the deity, it must be uncovered। लेकिन भगवान को जब हम भोग चढ़ाएंगे तो बाहर से हम अंदर से स्क्रीन लगा देंगे, फिर भगवान का जो भोग जो ढका हुआ है उसको ओपन करके भगवान को अर्पण करेंगे कुछ मंत्रा बोल के। सो खाना पकाने से पहले मंत्रा बोलना है, खाना पकाने वक्त मंत्रा बोलना है, खाना पकाने के बाद जब भोग अर्पण कर रहे हैं तब मंत्रा बोलना है, तो उसके बाद भगवान को थैंक यू बोलने के लिए मंत्र बोलना है, उसके बाद प्रसादम सेवन में महाप्रसादे गोविंदे बोलना है। सो देन फर्स्ट द फूड स्टफ शुड बी ऑफर्ड टू स्पिरिचुअल मास्टर। तो हम सीधा जाके राधा कृष्णा के मुंह में नहीं डालेंगे, हम उसको पहले प्रभुपाद जी के सामने रखेंगे, क्योंकि कृष्ण भक्तों के हाथ से ही भोग लेंगे और हम परिपूर्ण भक्त हैं नहीं अभी। तो हमें गुरु के माध्यम से जाना चाहिए। सो वी ऑफर दैट टू प्रभुपाद एंड वी प्रे टू हिम दैट ही मे देन ऑफर इट टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर, वो विल देन ऑफर टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर। तो अंत में वो वहां से राधा रानी तक जाएगा,
फिर राधा रानी कृष्णा को अर्पण करेगी, फिर उसको खिलाएगी, फिर वो खुद खाएगी प्रसादम, फिर गोपियों के देगी, फिर मंजरियों को वो देंगे, वहां से गुरु परंपरा में आएगा, फिर प्रभुपाद जी उसको सेवन करेंगे, जब प्रभुपाद जी उसको सेवन करेंगे और हमें देंगे, वो महाप्रसादम कहलाएगा। So the spiritual master accepts the offering on behalf of his disciple, offers it to Lord Chaitanya. तो अपने गुरु के माध्यम से चैतन्य ऑफर्स इट टू कृष्णा, तो चैतन्य महाप्रभु कृष्णा को ऑफर करेंगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी भी है। देन राधा कृष्ण ईट, जगन्नाथ ईट्स, देन महाप्रभु ईट्स। तो पहले राधा कृष्ण खाएंगे या जगन्नाथ जी खाएंगे, फिर वो महाप्रभु तक आएगा, वो परंपरा से महाप्रभु उसको पाएंगे, फिर परंपरागत वो गुरु परंपरा से प्रभुपाद तक आएगा। देन द स्पिरिचुअल मास्टर ईट्स एंड इट बिकम्स महाप्रसादम। तो महाप्रसादम क्या है? जब प्रभुपाद जी उसको पालेंगे और उनका भोग हमें देंगे, उनका प्रसाद हमें देंगे, वो महाप्रसाद कहलाएगा। एट लास्ट रिंग द बेल, टेक आउट द प्लेट, वाइप द प्लेस वेयर द प्लेट वॉज केप्ट। तो पापा जी जब पालेंगे तो उस थाली को हमें वहां से निकालना चाहिए और उस जगह को हमें साफ करना चाहिए कपड़े से। फिर एन ऑफरिंग, आफ्टर ऑफरिंग द फूड टू द लॉर्ड, वेट एटलीस्ट 5 मिनट्स फॉर हिम टू पार्टेक ऑफ द प्रिपरेशंस। ऐसा नहीं कि रख दिया और 1 मिनट में निकाल दिया, तो कम से कम 5 मिनट हमें देना चाहिए। मंदिर में लंच 20 मिनट ऑफर करते हैं, ब्रेकफास्ट 15 मिनट ऑफर करते हैं, और डिनर भी कुछ 15 मिनट ऑफर करते हैं। सो then you should transfer the food from special dinnerware and wash the dishes and utensils you use for the offering. तो जो आप भगवान के लिए थाली यूज किए थे उसको पहले धो, उससे हमारे यूटेंसिल्स में, हमारे पात्र में डालना चाहिए, और जो भगवान ने खाया है उसका हमें सफाई करना, हमें उसको धोना है। तो उसको धोने के बाद देन यू शुड, नाउ यू एंड एनी गेस्ट में ईट द प्रसादम। तो उस थाली को, जो भगवान का थाली है, उसको ऐसे ही नहीं रखना है, तो उसको ट्रांसफर करने के बाद उसको धो देना है, उसी समय धो देना, और फिर उसके बाद हमें खाना खाना। एंड नाउ वी ऑल्सो नो, वी ऑलरेडी नो, व्हेन वी आर ऑफरिंग प्रसाद भोगा टू प्रभुपाद, तो कृष्णा, राधा कृष्ण अल्टीमेटली, क्या मंत्र हमें पढ़ना चाहिए? पहले 3 बार प्रभुपाद जी प्रणाम मंत्र हमें पढ़ना चाहिए, फिर 3 बार हमें चैतन्य महाप्रभु के महामंत्र प्रणाम मंत्र पढ़ना चाहिए, फिर हमें 3 बार भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र पढ़ना चाहिए। सो व्हाट आर दे? नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। फिर ये 3 बार बोलना है। देन 3 times what to tell? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः, ये 3 बार। फिर कृष्ण प्रणाम मंत्र, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणेताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमः, नमो नमः, ये 3 बार। we chant this mantra because we're talking about eating prasada। तो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणेताय च, ब्राह्मण कृष्णा का मुख है, तो ब्राह्मण को खिलाएंगे तो कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे। अब यहाँ हम अपने आध्यात्मिक गुरु को खिला रहे, जो वैष्णव है, और वैष्णव कृष्णा तक पहुंचा के फिर वो महाप्रसाद को पाके हमें प्रसादम, महाप्रसादम दे रहे हैं। सो वी शुड रिमेम्बर दिस, वी आर नॉट चैंटिंग हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, वो चैंट नहीं करते हम। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणेताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो, ये 3 बार हमें फिर हमें अर्पण करना है, भगवान भगवान प्रभुपाद को प्रार्थना करना है, और राधा कृष्ण गौर निताय को भी प्रार्थना करना है कि गुरु मुखेन जो आ रहा है भोग वो पाए और आपको कृतार्थ करे। तो एक कहानी है अलारनाथ का, ये कहानी आपको होमवर्क की तरह पढ़ना चाहिए। तो अलारनाथ का जो कहानी है, तो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, तो ये मैं चाहता हूं कि आप होमवर्क के तहत आप इसको पढ़ें। सो इन द PDF दैट you have, so
नेक्स्ट विभाग है, वाई शुड वी हॉनर प्रसादा, प्रसाद को हमें भक्ति वह भावना से क्यों ग्रहण करना चाहिए। पहले प्रसाद क्या है, प्रसाद इज कृष्णाज मर्सी, कृष्णा का वो दया है हमारे ऊपर। प्रसाद मीन्स फूड स्टफ्स विच इज ऑफर्ड टू कृष्णा देन यू टेक। तो पहले कृष्णा को अर्पण होगा, फिर आपके गुरु तक आएगा, फिर आप लेंगे। प्रसाद मीन्स फेवर, आपके ऊपर उन्होंने कुछ दया कर दिया। वन शुड कंसिडर महाप्रसादम एज ए फेवर ऑफ कृष्ण, भगवान श्री कृष्णा का आशीर्वाद है हमारे लिए। प्रसादम इज स्पिरिचुअलाइज्ड फूड, प्रसादम क्या है, वो आध्यात्मिक आहार है, क्योंकि कृष्णा को अर्पण हो गया है। So everything you offer on your altar becomes prasadam, the mercy of the Lord. Flowers, incense, water, food, everything you offer, जो भी पदार्थ आप कृष्णा को अर्पण करेंगे वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हो जाएगा। The Lord enters into these offerings and thus the remnants are not different from him. तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसमें प्रवेश कर देते हैं। तो कृष्ण प्रसादम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दैट इज वाई वी ऑनर इट, दैट्स व्हाई वी शुड नॉट वेस्ट इट, वरना हम कृष्णा को कूड़े दान में डाल रहे हैं। तो जितना चाहिए उतना ही हमें लेना चाहिए और उसको संपूर्ण तरीके से खा देना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो व्हेन अ कॉपर वायर इज इन टच विद इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नो लॉन्गर कॉपर। तो कोई मेटल लाइव तार पे रख दिया जाएगा, वो भी इलेक्ट्रिकल पावर बन जाएगा। Although copper is just a metal, as soon as it comes in contact with electricity, it becomes electrified. तो एक धातु है कॉपर, लेकिन जब वो इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आ जाएगा वो भी इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा, और जो भी उसको छुएगा उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। वैसे ही कॉपर को छुएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो तार पे लगा है तो हमें शॉक लगेगा। सो ईच डे वी डिस्ट्रीब्यूट फूड प्रसादम, हर दिन इस्कॉन मंदिरों में फ्रूट खिचड़ी प्रसादम वितरण होता है। Now one may ask, why is this fruit different from ordinary fruit? तो इस फल में और जो सामान्य फल है घर में जो लोग खाते हैं उसमें क्या अंतर है। So because we offer the fruit to Krishna, it immediately becomes spiritual, क्योंकि हमने उस पदार्थ को कृष्णा के संतृप्ति के लिए, कृष्णा के भोग के लिए यूज किया है, तो वो आध्यात्मिक बन जाएगा। वरना जो सेब है वो भौतिक चीज है, लेकिन जब वो अर्पण होके आता है भगवान के तो वो आध्यात्मिक बन जाता है। कृष्ण और उस सेब में कोई अंतर नहीं रहता उसके बाद, इसलिए हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम से हमें उसको खाना है। कृष्णा इन दैट फॉर्म शुड बी ईटन। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते अरे ये कृष्णा कैसे खाएंगे चबा के। कृष्णा इज इन दैट फॉर्म वेयर यू हैव टू ईट इट, तो आपको खाना चाहिए। सो नेक्स्ट, so just go on eating Krishna prasadam and you will see how you're making progress in Krishna consciousness. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, खाने का भक्ति मूवमेंट है और नाचने का भक्ति मूवमेंट है। खा के नाच के हम कृष्णा के पास जाएंगे। सो महाप्रसादम, तो महाप्रसादम, the remnants of food left by a pure Vaishnava, a spiritual master, is called Mahaprasadam. तो इट इज नॉट सिंपली महाप्रसादम, इट बिकम्स महाप्रसादम जब प्रभुपाद जी के हाथों से आपको वह वापस मिल जाएगा। इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल एंड इज आइडेंटिफाइड विद लॉर्ड विष्णु, स्वयं भगवान है वो प्रसाद। तो सच रेमिनेंट्स आर नॉट ऑर्डिनरी, तो वो जो अवशेष है जो गुरु के मुखे हमें मिला वो एक साधारण आहार नहीं है। मैंने ऑर्डिनरी पर्सन टचेस सच प्रसादम, केवल छूने से कोई व्यक्ति उसको छुएगा तो उसका मन शुद्ध हो जाएगा, तो जब वो खाएगा तो उनका मन अंतरंग बहिरंग सब शुद्ध हो जाएगा एंड हिज माइंड इज रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ ए प्योर ब्राह्मण, वो एक शुद्ध ब्राह्मण बनने का योग्य बन जाता है। प्रसाद सेवन करने से, यहाँ तो बोल रहे हैं प्रभुपाद बोल रहे प्रसाद को टच करने से ये प्रभाव है। सो ग्लोरी ऑफ महाप्रसादम, फिर भी ये एक कहानी है, तो आपको ये कहानी होमवर्क के तहत फिर से पढ़ना है। Why should we honor प्रसादम? First reason, to get relief from all sins.
पहला रीजन क्या है? सारे पापों से मुक्ति के लिए। यज्ञ शिष्टार्जिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। सारा किल विष, जो बुरे कर्म है मिट गया, जो पाप है मिट गया। भुंजते त्व अगम पाप ये पचन्ते आत्म कारण। जो अपने लिए बना के खा रहा है वो केवल पाप ही खा रहा है, क्योंकि उसमें पाप छुपा है। जिस आहार में कृष्ण नहीं है उस आहार में क्या है? पाप छुपा है, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए उपयोग होता है। So the devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is first offered for sacrifice. यज्ञ, यज्ञ मतलब कृष्णा, कृष्णा का अर्पण हुआ है। यज्ञ शिष्टा, तो यज्ञ में अर्पण होके आया है। यज्ञ शिष्टा सिनो संतो, तो असीना संता, इसको खाते हैं संत। मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सारे पाप से मुक्ति। और अगर ये यदि नहीं ऐसे नहीं करेंगे, कृष्णा का अर्पण करके नहीं खाएंगे, केवल पाप कार्य हैं। दूसरा रीजन क्यों हमें वाई विष्णु प्रसादम, टू रियलाइज कृष्णा। कृष्णा के आशीर्वाद के रूप में जो प्रसाद आया है, जो स्वयं कृष्णा है, जब हमारे जीभ पे चढ़ेगा, हमारे अंदर जाएगा, हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा। कृष्णा के बारे में हमें साक्षात्कार होगा। ये होगा इस पॉसिबल सिंपली बाय ईटिंग कृष्ण प्रसाद। So the tongue must be utilized to eat Krishna prasadam and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare। केवल ये दो कार्य से हम कृष्णा को जान पाएंगे। We will realize Krishna, कृष्णा का साक्षात्कार हमारे लिए हो जाएगा। We cannot see Krishna with our material eyes, we cannot hear him with our material ears, nor we can touch him with our material hands. But if we engage our tongue in his service, then he will reveal himself। स्वयं एव स्फुरत्यदा, भगवान खुद अपने आप को हमें हमें दर्शन देंगे, तो बोलेंगे या मैं हूं, देख लो, महसूस करो। तीसरा रीजन क्यों प्रसाद को ऑनर करना चाहिए, टू हेल्प कंट्रोल अवर सेंसेस, हमारे इंद्रियों को वश में रखने के लिए, संयम में रखने के लिए। इफ आई वांट टू कंट्रोल माय सेंसेस, देन द टंग कंट्रोल इज द फर्स्ट बिजनेस। जीभ को कंट्रोल करने से हम बाकी हमारे इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जीभ ना तारमध्य जीवाति लोभोमय सुदुर्मति, सबसे विकृत हमारा जो इंद्रिया है। और यदि इसको कंट्रोल कर लेंगे, बाकी सब कंट्रोल हो जाए। तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? चैंट हरे कृष्णा, ईट कृष्णा प्रसादम ओनली। Lord Krishna is so kind that in order to control my senses, my tongue, he has given me so much nice food stuff, so that if I eat them, my tongue will be controlled। उसको खाने से मैं, मेरा इंद्रिय संयम हो जाएगा और मैं अपने आप को नियंत्रण में रख सकूंगा और मेरे इंद्रियों को वश में रख सकूंगा। फोर्थ रीजन, टू गेन इम्यूनिटी फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन। जो भौतिक कलमश है, कलयुग का कलमश है, उससे मुक्ति पाने के लिए हमें प्रसादम पाना चाहिए। The material world is full of contamination, and one who is immunized by accepting prasadam of the Lord is saved from the attack। तो कली के प्रभाव से मुक्ति पाना है तो हमें कृष्ण प्रसादम सेवन करना है। तो बाकी तो हाउ शुड वन हॉनर प्रसादम, ये सेक्शन हम अगले हफ्ते सेशन में करेंगे। या फिर अब आप 1 मिनट के बाद हमारा लॉग ऑफ हो जाएगा, फिर आप 1 मिनट के बाद लॉग इन कीजिए। इस सेक्शन को भी, जो अभी 10 मिनट लेगा, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज लॉग इन अगेन आफ्टर द लॉग ऑफ नाउ, आफ्टर द 40 मिनट्स, इन 30 सेकेंड वी आर गोइंग टू लॉग ऑफ। प्लीज लॉग इन अगेन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। So we will